ان چکروں میں اپنے خدا کو اپنے گاڈ کو نہ بھولنا وہ اصل ہے. اس ظلم اور زیادتی کو اگر یہاں ہو رہا ہے تو ہم ایسے اللہ کو نہیں مانتے. وہ اچھا کام کرتا ہے تو ثواب بھی اسی کو ملتا ہے. ایسا نہیں کہ اس کا کریڈٹ اللہ لے جاتا ہے اور ثواب اپنے آپ کو دیتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایتھزم کے پاس اس کے علاوہ اور کچھ ہے بھی نہیں. تو کیا لگتا ہے کہ سلسلہ آگے بڑھے گا, یہیں پر رک جائے گا؟ معاملہ تھوڑا سا بگڑ رہا ہے, آڈینس کی طرف سے بھی, تو فوراً کنٹرول کیا. میں انہیں بار بار اکیڈمک ماحول میں لانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن انہیں سمجھ میں نہیں آ رہی. بہرحال کہ نہیں یہی دنیا ہے اور اس کے بعد آگے کچھ نہیں ہے تو ٹھیک ہے, پھر تو ایتھیسٹک ورلڈ ویو صحیح ہوگا. میں نے یہ چیز اپنے اوپننگ اسٹیٹمنٹ لوگوں کے دماغ میں پتہ کیا چیز بیٹھ گئی, وہ جو انہوں نے بات کہی تھی نا کہ غزہ میں اتنا کچھ ہو رہا تھا کہ میں اگر دنیا کا مالک ہوتا تو میں یہ سب چیزیں نہیں دیکھ پاتا نا, کہ مالک اتنا کچھ دیکھ رہا ہے تو یہ چیزیں تھوڑی نا دیکھ پاتا کہ کیسے وہ مر رہا ہے بندہ بیماری کے ساتھ, بچوں کے منہ پیلے ہو گیا نا, کہ ایسے کون جائے گا, کون خدا جائے گا کہ ایسا ہو. وہ لوگ پہلے ہی کہی تھی کہ اگلے 2 گھنٹے میں آپ دیکھ لیں گے جناب جاوید اختر صاحب صرف اور صرف ایموشنل آرگیومنٹ دیں گے, لاجیکل آرگیومنٹ نہیں دیں گے. ہیلو ایوری ون, میں سرشی اکال, السلام علیکم جناب, کیسے ہو آپ سب؟ آئی ہوپ سو گائز یو آل آر ڈوئنگ ایبسلیٹلی گریٹ اینڈ فائن. اینڈ گائز آپ سبھی کو پتہ ہے کہ مفتی اسماعیل صاحب کی اور جاوید اختر جی کی وہ ڈیبیٹ ہوئی ہے, ڈز گاڈ ایگزسٹ, اور ہم نے بھی اس پہ ریئیکشن کرا ہے. تو اس کے اوپر نا بہت سے لوگوں نے کہا کہ بہت اچھی ڈیبیٹ ہوئی ہے, یہ ہے وہ, اور یہ آج ویڈیو ہونے والے لوگوں کی رائے ہے نا کہ ڈیبیٹ کے بعد یاسر ندیم اور شمائل ندوی کا ایک اور چونکانے والا دعویٰ. سو فی الحال دیکھتے ہیں بھائی ویڈیو کو, ایسا کون سے دعوے کی بات کر رہے ہیں یہ, ہے نا. اور کیا بولتے ہیں شاید دوسری ڈیبیٹ بھی ہو جائے بھائی, جہاں تک لگ رہا ہے میرے کو لوگوں نے بہت سراہا ہے, پسند کرا ہے اس چیز کو. سو فی الحال پلے کرتے ہیں گائز اور پھر کرتے ہیں باقی باتیں ڈسکس. ٹائمز میں خوش آمدید. دلی کے کانسٹیٹیوشن کلب میں ہونے والی ڈیبیٹ آج کی بہت اہم اور تاریخی رہی. تقریباً 2 گھنٹے تک مناظرہ جاری رہا, ڈیبیٹ چلتی رہی. جاوید اختر اور مفتی اسماعیل ندوی کے بیچ میں جاوید اختر نے اپنی دلیلیں دی خدا کے عدم وجود پر, خدا کے انکار پر, اور مفتی اسماعیل ندوی نے باضابطہ ثابت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہے, خدا کا وجود ہے. عنوان ہی رکھا گیا تھا ڈز گاڈ ایگزسٹ, اور اسی ٹاپک پر بحث ہوتی رہی. جاوید اختر نے ٹاپک سے بھٹکنے کی کوشش کی, ادھر ادھر جانے کی کوشش کی, لیکن مفتی اسماعیل ندوی نے مدعا پر رہتے ہوئے, ٹاپک پر رہتے ہوئے بحث کی. اور کانسٹیٹیوشن کلب کا جو اسپیکر ہال ہے پورا بھرا ہوا تھا. سامعین ٹائم سے پہلے آ گئے تھے, 2 گھنٹے کا ٹائم تھا, 11 سے 1 بجے تک, اور آڈینس کو کہا گیا تھا, تمام سامعین کو کہا گیا تھا کہ انہیں 11 بجے سے پہلے آ جانا ہے. اور تقریباً 11:15 میں یعنی 10:45 پر ہی پورا اسپیکر ہال بھر چکا تھا. اور دونوں طرف کے لوگ تھے, 100 لوگ مفتی اسماعیل ندوی کی طرف سے اور 100 لوگ تھے جاوید اختر کی طرف سے. شروع میں دونوں نے اپنی اپنی دلیلیں دی, اس کے بعد ایک دوسرے کی دلیل کا جواب دیا, پھر کوشچن آنسر کا سلسلہ شروع ہوا. آڈینس میں آئے لوگوں نے سوال پوچھا اور دونوں لوگوں نے جواب دیا. سوربھ دویدی جو للن ٹاپ کے فاؤنڈر اور سمپادک ہے, انہوں نے موڈریٹر کا فریضہ انجام دیا, اور سوربھ دویدی کی بھی لگاتار تعریف کی جا رہی ہے. اس ڈیبیٹ میں مفتی یاسر ندیم الواجدی بھی موجود تھے جو امریکہ میں رہتے ہیں اور مفتی اسماعیل ندوی کو استاذ بھی ہیں. انہوں نے اس ڈیبیٹ کے ہو جانے کے بعد گلے لگ کر مبارکباد بھی پیش کی اسماعیل ندوی کو. آج کی ڈیبیٹ کیسی رہی اور اس کا کیا اثر جائے گا, اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا, ان تمام مدعوں پر بات چیت کرتے ہیں مفتی یاسر ندیم الواجدی سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, کہ ہم نے راستہ دکھا دیا, نہیں فری ول دے دی. ابھی آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس راستے پر چلیں یا نہ چلیں. چلیں گے تو شکر گزار کہلائیں گے, نہیں چلیں گے تو ناشکرے کہلائیں گے. تو ایک انسان اگر غلط کام کرتا ہے فری ول کے نتیجے میں تو اس کو سزا ملتی ہے, اور اگر وہ اچھا کام کرتا ہے تو ثواب بھی اسی کو ملتا ہے. ایسا نہیں کہ اس کا کریڈٹ اللہ لے جاتا ہے اور ثواب اپنے آپ کو دیتا ہے. جاوید اختر نے بہت زیادہ اس پر زور دیا ٹائم پر, کہ کائنات کی تخلیق سے پہلے یا ٹائم کو وجود میں لانے سے پہلے اللہ کیا کر رہا تھا, کب سے ہے وہ, کیا فریم ورک ہے. اس کا جواب بہت واضح ہے, اور وہ یہ کہ جو چیز ٹائم لیس ہوتی ہے اس کے بارے میں یہ سوال کرنا کہ وہ کس ٹائم میں تھا اور اس ٹائم میں وہ کیا کر رہا تھا, خود ایک فلیشس اسٹیٹمنٹ ہے اور ابسرڈیٹی ہے. تو خدا تعالیٰ جو ٹائم کا خالق ہے وہ ٹائم میں کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ مان لیجئے کوئی پرزہ بناتے ہیں, آپ نے مائک بنایا, تو آپ مائک کے اندر نہیں ہوں گے, مائک کے باہر ہی ہوں گے. لیکن چونکہ ہمارے پاس ایک لمیٹڈ لینگویج ہے, یہ ہمارا لمیٹیشن ہے, یہ خدا کا قصور نہیں ہے. تو اس لمیٹڈ لینگویج کی وجہ سے ہم بعض مرتبہ پہلے اور بعد کا لفظ بول دیتے ہیں, ہر جگہ کا لفظ بول دیتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ خدا نہ کسی مکان میں ہے نہ کسی زمان میں ہے, وہ ٹائم لیس ہے اور اسپیس لیس ہے, اور اس کے بارے میں ٹائم یا اسپیس کا سوال کرنا یہ بنیادی غلطی ہے. جاوید اختر ریپ کا بار بار ذکر کر رہے تھے کہ ریپ ہو رہا ہے تو کیا خدا ذمہ دار ہے, نعوذ باللہ من ذالک. تو اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے آپ, کیا جواب دیں گے اس کا؟ ذمہ دار خدا کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتا. مفتی اسماعیل صاحب نے بڑا اچھا ایک جواب دیا تھا, اور وہ یہ تھا کہ ایک اگر ٹیچر کسی اپنے اسٹوڈنٹس کا ایگزام لیتا ہے, وہ ملٹیپل چوائس
क्वेश्चंस हैं तो उसमें अगर 4 ऑप्शंस हैं तो एक ही तो सही है ना, बाकी 3 तो गलत हैं। तो आप टीचर को इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते कि भाई आपने 3 सवाल या 3 ऑप्शंस गलत कैसे डाल दिए। वो आपके इम्तिहान के लिए है। तो अगर वर्ल्ड व्यू ये है कि नहीं यही दुनिया है और उसके बाद आगे कुछ नहीं है तो ठीक है, फिर तो एथिस्टिक वर्ल्ड व्यू ही सही होगा। लेकिन अगर वर्ल्ड व्यू ये है कि हम कहीं से आए और कहीं हमें जाना है तो फिर एथिस्टिक वर्ल्ड व्यू डज नॉट मेक एनी सेंस। अच्छा, इस तरह की जो डिबेट है हालिया दिनों में जो मौजूदा सिनेरियो है, मुझे लगता है पहली मरतबा इस तरह की डिबेट हुई या काबिर की तारीख़ में तो इस तरह का है तज़किरा। तो क्या लगता है कि सिलसिला आगे बढ़ेगा, यहीं पर रुक जाएगा, इसका कोई अच्छा मैसेज जाएगा? ये सिलसिला आगे बढ़ना चाहिए और मैं समझता हूँ कि इस डिबेट से इससे क़ता नज़र कि किसका पलड़ा भारी रहा किसका नहीं, ये पैगाम ज़रूर जाना चाहिए कि एकेडमिक माहौल में मुख्तलिफ़ुल ख़याल लोग आपस में मिलकर बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं और एक दूसरे की दलीलें सुन सकते हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि अल्लाह के वजूद पर कोई डिबेट नहीं होनी चाहिए, बाकी तमाम मौज़ूआत पर आप डिबेट कीजिए। हुजूर के ज़माने में भी अल्लाह ताला के वजूद पर कोई डिबेट नहीं हुई। नहीं, मैं नहीं समझता कि हमारे यहाँ जो ट्रेडिशन है इल्म कलाम का कह लें या पूरा इल्मी जो पूरा कल्चर है उसमें किसी ने ये कहा हो कि खुदा के वजूद के ऊपर डिबेट नहीं होनी चाहिए। बल्कि हज़रत बाक़िर अलैहिर्रहमा, बाक़िर सादिक, इमाम बाक़िर जिनको कहते हैं, उन्होंने तो बाकायदा खुदा के वजूद पर कई मुनाज़रे किए हैं और बाकायदा वो छपे हुए हैं और ये मुअतज़िला के ज़माने से पहले थे। वैसे आज पलड़ा किसका भारी रहा? ये तो बिल्कुल वाज़ेह है, ऑडियंस ने तय कर दिया है और आप हमारे चेहरे की खुशी देखकर बता सकते हैं। बिल्कुल। ज़रा सा बातचीत करेंगे मुफ्ती इस्माइल नदवी साहब से। आप थे डॉक्टर यासिर नदीम अलवाजदी, अमेरिका में रहते हैं और लगातार इस मौजू पर अब काम भी कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के स्पीकर हॉल में ये डिबेट हुई, दोनों तरफ के लोग थे, दोनों तरफ से तालियां बज रही थी, आपने लाइव ज़रूर देखा होगा और बड़े अच्छे सिस्टम अंदाज में ये हुआ। तो इधर मुफ्ती इस्माइल नदवी है, आज उन्हीं का दिन है, फ़ोटो में लगे हुए हैं, तो आपको मुबारकबाद अपने पूरे फैंस के साथ। आज का जो डिबेट रहा कैसा रहा आपके लिए? बहुत मैंने सोचा था कि कुछ थोड़ी ज़्यादा अच्छी एकेडमिक गुफ्तगू होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा एकेडमिक हो नहीं पाई। उसकी वजह यह है कि वो टॉपिक से डाइवर्ट हो जा रहे थे। मैं उन्हें बार बार एकेडमिक माहौल में लाने की कोशिश कर रहा था लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रही। बहरहाल ओवरऑल अच्छा रहा और जिसे हम कहते हैं कि भाई बल नक़्ज़िफ़ु बिल-हक़्क़ि अलल बातिल फ़यदमग़ुहु फ़इज़ा हुवा ज़ाहिक़, तो महज़ अल्लाह का फ़ज़ल रहा, अल्लाह का फ़ज़ल रहा। और हमारे जो असातिज़ा हैं और हमारी जो पूरी टीम है जो स्टेज पे नज़र नहीं आई लेकिन पीछे बहुत काम कर रही थी, जिनमें आप भी हैं, तो जो इन तमाम हज़रात की दुआओं और मेहनतों का नतीजा अल्लाह रब्बुल आलमीन जज़ाए खैर दें। और सच ये है कि जो हक़ है वो वाज़े होकर रहता है। क्या आपको लग रहा था कि आपकी तैयारी पूरी है और वो तैयारी करके नहीं आए, यूँ ही आ गए हैं? मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो है वो वही बातें करेंगे और मैं समझता हूँ कि बातें पुरानी। हाँ, और मैं समझता हूँ कि एथिज़म के पास इसके अलावा और कुछ है भी नहीं। बस यही है प्रॉब्लम ऑफ ईविल। आप देख रहे होंगे कि बार बार वही चीज़ें जवाब के बाद भी उठाया जा रहा है। वो हुआ इमोशनल आर्ग्यूमेंट कि आप इमोशन को ट्रिगर करें, उसको जो है आप जो है चाहें कि भाई लोग मुतासर हो, इमोशनल हो जाएं, लॉजिक का इस्तेमाल ना करें। तो ये हरबा हमेशा से रहा है एथिस्टिक वर्ल्ड व्यू का, तो बस वही रहा। सौरभ द्विवेदी बता रहे थे कल आप लोगों की बातचीत हुई थी, चाय पर मुलाकात हुई, तो वहाँ पर क्या बातचीत हुई थी? वहाँ पे बस ऐसे ही एक फ्रेंडली माहौल में हम लोगों ने गुफ्तगू की और एक दूसरे से तारुफ़ हुआ। और इसमें कोई शक नहीं कि बहैसियत इंसान बहुत अच्छे आदमी हैं जावेद अख्तर साहब, और बहुत रिस्पेक्टफुल अंदाज़ में उन्होंने गुफ्तगू की। हमने भी उनकी उम्र का लिहाज रखा, हमारे बड़े हैं और मैं समझता हूँ कि आगे भी उनके साथ रब्ता रहेगा हमारा। तो इनिशिएटिव किसने लिया था कल की मुलाकात का? कल की मुलाकात का ये मुत्तफ़क़ अलैह इनिशिएटिव था दोनों की तरफ से। डिबेट से पहले एक बार बैठ जाएं ताकि चूँकि फ़र्स्ट टाइम मुलाकात हो रही है तो यहाँ स्टेज में अनकम्फर्टेबल फील ना हो, इसलिए आ जाएं। तो आपको लगता है कि आपने जो समझाया जावेद अख्तर पर कुछ असर पड़ा, उनके जो आए हुए लोग थे उन पर कुछ असर पड़ा? ये तो कुछ दिनों के बाद पता चलेगा अभी तो पता नहीं है। तो आगे ये डिबेट जारी रखनी है या सिलसिला यहीं पर बंद होगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि एकेडमिक अंदाज में और पीसफुल माहौल में इस तरह की डिबेट्स जारी रहनी चाहिए। ये नहीं कि हर बार मैं ही करूँ, बात करें, डिस्कशन हो, लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए, जहाँ वायलेंस नहीं होना चाहिए। भाई आपका एक वर्ल्ड व्यू, हमारा एक वर्ल्ड व्यू, आइए एकेडमिक अंदाज में डिस्कस करते हैं कि कौन सा वर्ल्ड व्यू का ज़्यादा फ़ायदा है, कौन सा वर्ल्ड व्यू सही है। अब जिसको जो समझ में आए कबूल कर। मॉडरेटर को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशानी थी कि जो मॉडरेटर होगा अपनी ज़िम्मेदारी निभाएगा या इधर झुकेगा उधर झुकेगा, तो कैसा रहा आपका? सौरभ साहब को तो मैं मुबारकबाद दूंगा और आज जो है उनके मुतालिक मेरे दिल में और कदर बढ़ी कि चूँकि ज़ाहिर उनसे पहले मुलाकात नहीं थी तो एक अंदेशा था कि पता नहीं कैसा रहेगा, लेकिन बहुत ज़बरदस्त मॉडरेटर का रोल उन्होंने अदा किया और पूरे टाइम का ख्याल रखा। जहाँ पर उन्होंने देखा कि
मामला थोड़ा सा बिगड़ रहा है ऑडियंस की तरफ से भी, तो फ़ौरन कंट्रोल किया, बहुत अच्छा काम किया। तो मैं पूरे लल्लन टॉप टीम की जगह अगर कोई अपना तबसरा कर रहा तो वहाँ पर भी रोका उन्होंने, ऐसा नहीं कि उन्होंने उसको आगे बढ़ाया हो। जी हाँ। अच्छा, ये जो सारी डिबेट हुई तो इसकी पूरी तैयारी किस तरह हुई और आगे क्या प्लान है? जो आपका इदारा है वहीन फाउंडेशन, उसका मकसद क्या है, मिशन क्या है? वहीन फाउंडेशन का बुनियादी मकसद यही है जो आज हुआ है कि एकेडमिक अंदाज में और इल्मी अंदाज में वेस्टर्न आइडियोलॉजीज़ जो एक खोखली आइडियोलॉजीज़ हैं, जो इंसानों को सही बिलीफ से दूर ले जा रही हैं, मटीरियलिज़म में मुब्तला कर रही हैं, साइंटिज़म में मुब्तला कर रही हैं, हम बताएं कि देखो इन चक्करों में अपने खुदा को, अपने गॉड को ना भूलना, वो असल है। तो वहीन फाउंडेशन इसी तरह एकेडमिक काम करता रहेगा। ये आपकी पहली डिबेट थी फाउंडेशन की? जी हाँ, पहली डिबेट थी। अच्छा, गज़ा के मसले पर उन्होंने आपको फंसाने की कोशिश की बार बार, गज़ा पर, रे पर भी, कि गज़ा में जो कुछ हो रहा है क्या इसके लिए अल्लाह ज़िम्मेदार है, खुदा ज़िम्मेदार है? मैंने ये चीज़ अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में पहले ही कही थी कि अगले 2 घंटे में आप देख लेंगे जनाब जावेद अख्तर साहब सिर्फ और सिर्फ इमोशनल आर्ग्यूमेंट देंगे, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट नहीं देंगे। जब इंसान के पास कोई लॉजिक आर्ग्यूमेंट ना हो तो फिर वो क्या करता है कि वो इंसानों के इमोशंस को भड़काना चाहता है और अपनी तरफ माइल करना चाहता है। तो ये हरबा नया नहीं है, हमेशा से रहा है और मैं इसके लिए प्रिपेयर्ड था अल्हम्दुलिल्लाह। साफ़ मुफ्ती शमाइल नदवी जिनके अदारे ने और इनकी तरफ से ये डिबेट रखी गई, दोनों लोगों ने शिरकत की और सौरभ द्विवेदी मॉडरेटर थे और उन्होंने अच्छी तरह ये फरीज़ा निभाया। ये पूरी डिबेट 2 घंटे की है तकरीबन और अलग अलग अंदाज से हुई। दोनों ने अपनी अपनी बात रखी, फिर एक साथ कन्वर्सेशन हुई, क्वेश्चन आंसर रहा और दोनों तरफ से लोगों ने सवाल पूछा, हर तरह से जवाब देने की कोशिश की गई। आप उस मुकम्मल डिबेट को ज़रूर देखेगा और मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। ये जो जुल्म इतना हो रहा है और इस ज़्यादती हो रही है, इस जुल्म और ज़्यादती को अगर यहाँ हो रहा है तो हम ऐसे अल्लाह को नहीं मानते, तो इनका ऐसे अल्लाह को नहीं मानना ही और ये लफ्ज़ का कहना ही, ये एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने अपनी ज़बान से कि अल्लाह है। अब अल्लाह सही कर रहा है या गलत कर रहा है वो एक अलग पहलू है जो अलग डिबेट होगा। डज़ गॉड एग्जिस्ट, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इस बात पर कि भाई ये हो रहा है, इतनी सा तकलीफ़ें, इतना ये वो, और ऐसे अल्लाह को हम नहीं मानते। तो नहीं मानना अलग चीज़ है, मानना अलग चीज़ है, लेकिन इनके न मानना ही ने साबित कर दिया कि वो अल्लाह है जिसको वो नहीं मानते। साइंस ये प्रूव करती है कि इसके अंदर भी लाइफ है। देखें, जिस तरीके से हमारे सेंस ऑर्गन्स की एक लिमिटेशन है, लॉजिक की भी लिमिटेशन है, तो उस लिमिटेशन के अंदर जितनी चीज़ें आती हैं, यानी आप अपने लॉजिक और अक्ल से जितनी चीज़ों को जान सकते हैं जिनमें एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड भी है, तो वहाँ तो हम लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब हम ऐसी चीज़ों के मुताल्लिक़ हमसे सवाल किया जाए जहाँ हम ना अपने सेंस ऑर्गन्स के ज़रिए उसे जान सकते हैं, ना अपने लॉजिक के ज़रिए जान सकते हैं, तो अब हमें तीसरा सोर्स ऑफ नॉलेज इख्तियार करना पड़ेगा और वो तीसरा सोर्स ऑफ नॉलेज गॉड की रेवलेशन है जो अपने ख़ास बंदों के ऊपर वो भेजता है। ये असल में जावेद अख्तर साहब एक प्रॉब्लम में मुब्तला हैं। उस प्रॉब्लम का नाम है साइंटिज़म। साइंटिज़म कहते हैं कि आप साइंस को ही वाहिद सोर्स ऑफ नॉलेज बताएं। आप बताइए मोरालिटी को साइंस से आप साबित कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। साइंस का मदार एम्पेरिकल एविडेंसेस पर है। एम्पेरिकल एविडेंस से मोरालिटी साबित नहीं होगी, एम्पेरिकल एविडेंस से कॉन्शियसनेस साबित नहीं होती है, एम्पेरिकल एविडेंस से लॉ ऑफ कॉजालिटी साबित नहीं होता है। आप कॉज एंड इफेक्ट को तो दिखा सकते हैं, लेकिन उन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो खुद मेटाफिजिकल है। तो आप ऐसी चीज़ का इनकार कर रहे हैं जो हमारा लॉजिक खुद बता रहा है कि मेटाफिजिकल रियलिटी एग्जिस्ट करती है। वो कह रहे हैं मेटाफिजिकल रियलिटी मुझे नहीं पता क्या होता है। मैं नहीं समझ सकता कि इस उम्र में आने के बाद मेटाफिजिकल मतलब कोई नहीं समझता। सर, भविष्य में ऐसी डिबेट की और संभावना है? देखें, ये एक बहुत बड़ी खूबी है। मैं जावेद साहब को भी अप्रिशिएट करूँगा, उनकी टीम को भी, कि हमारे मुल्क के कैसे हालात हैं आप जानते हैं। इन हालात में प्यार मोहब्बत के साथ बैठकर एकेडमिक अंदाज में डिस्कशन कर लेना, मैं समझता हूँ ये माइलस्टोन है, ये बहुत बड़ा काम हुआ है। और मैं समझता हूँ कि डिफरेंट जो आइडियोलॉजीज़ हैं सबको लड़ाई करने के बजाय भाई ऐसे ही बैठ के प्यार मोहब्बत से बात कर लो ना, साथ में कॉफ़ी पीते हैं और बात कर लेते हैं। आप अपनी बात साबित करें, हम अपनी बात साबित करें, फिर लेट ऑडियंस डिसाइड, जिसको जो समझ में आए वो करें। जिस दिन ये हम करने लग जाएं इस मुल्क में, याद रखें इस मुल्क में कोई दंगा फसाद नहीं होगा। मुफ्ती साहब, एक बेसिक सा सवाल अक्सर जावेद साहब या उन जैसे और बहुत सारे लोग हैं जो उठाते हुए नजर आते हैं कि अगर वाकई गॉड एग्जिस्ट करता है तो फिर जो गलत काम है उसको परमिशन कैसे मिल जाती है? ये हमने बताया। देखें भाई, बहुत कई बार समझाया, मुझे नहीं समझ में आया कि उनको क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि एग्जामिनेशन हॉल में हम और आप यहाँ इस दुनिया में यूं ही नहीं आए हैं। हमारा वर्ल्ड व्यू, थीस्टिक वर्ल्ड व्यू यही है। हम इस दुनिया में एक पर्पज़ के तहत आए हैं और इस पर्पज़ के तहत जब आए हैं तो हम सब
गॉड के सामने अकाउंटेबल हैं और हमारी अकाउंटेबिलिटी ईविल के बगैर हो सकती है? एक इंसान के पास अगर ईविल करने का ऑप्शन ही ना हो, वो तो मजबूर हो गया ना अच्छा काम करने पे, तो फ्री विल कहाँ रहा? लेकिन हम जानते हैं हम और आपके फ्री विल मौजूद है। तो खुदा ने लिखा है ना। तो मुक़द्दर का मतलब आप क्या समझते हैं? मुक़द्दर का मतलब ये नहीं होता है कि तकदीर में जो खुदा ने लिख दिया और फोर्स कर दिया। तकदीर इज़ द नॉलेज ऑफ अल्लाह, मुक़द्दर इज़ द नॉलेज ऑफ अल्लाह। फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर है, उसने देखा एक मरीज़ की हालत इतनी ख़राब हो गई है कि ये 1 महीने से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह पाएगा। उसने अपनी डायरी में लिख दिया कि भाई ये 1 महीने के अंदर मरेगा, और वो मर गया। क्या डॉक्टर के लिखने की वजह से मरा या अपने कंडीशन की वजह से पड़ा? केस में तो ऐसा नहीं होता। हर एक केस में ऐसा ही होता है, हर एक केस में ऐसा ही होता है। खुदा हर चीज़ का इल्म रखता है। डॉक्टर में और गॉड की फ़र्क है, कोई तशबीह नहीं है दोनों के दरमियान। लेकिन मिसाल आपको समझाने के लिए दे रहा हूँ, आप उसको पकड़ ले रहे हैं, लेकिन आगे जो मैं कह रहा हूँ वो नहीं समझ। मैं ये कह रहा हूँ कि गॉड का नॉलेज है मुक़द्दर, यानी गॉड को मालूम है कि आप अपने फ्री विल का इस्तेमाल करके क्या करने वाले क्या नहीं करने वाले। उसने पहले ही उसको लिख दिया अपने नॉलेज के हिसाब से, उसे मुक़द्दर कहते हैं। लेकिन उसने फोर्स नहीं किया आपको गलत काम करने। फिर उन्हें मालूम है तो इम्तिहान क्यों? सो गाइस, ये थी वीडियो और ये थे इनके कुछ सवाल जवाब जो पब्लिकली दिए गए हैं, जो डिवोटरों ने पूछे हैं। बोलना ये है कि वो टॉपिक से हट रहे थे, कि वो इमोशनल लोगों को वो कर रहे थे ना, कि जब लोगों के पास लॉजिकल आंसर नहीं रहते तो फिर वो इमोशनल तरीके के साथ करते हैं। जैसे उन्होंने गजा वाला टॉपिक पकड़ा है, तो उनको पता है कि लोग इस चीज़ से अटैच होंगे कि हाँ यार, है ना, कि लोग, आपको पता ही है भाई कि हम इंडियंस जो हैं वो थोड़े से वो हैं, क्या वो वर्ड यूज़ करते हैं, सेंसिटिव से हैं ना, कि हमें कोई भी बात लगेगी ऐसे कि रिलीजन के ऊपर हो रही होगी या किसी की हमारे सामने दुख हो रहा होगा किसी को, ना, तो हम वैसा देखेंगे कि ह्यूमन नेचर ही ऐसा है कि भाई वो बड़ा सेंसिटिव है ह्यूमन नेचर, है ना। तो वो देखा उन्होंने कि क्या क्या हो रहा है गजा में बिना गलती के, ना, तो वो कह रहे थे कि भगवान ऐसे कैसे, ऊपर वाला कैसे देख रहा है, खुदा देख कैसे ले रहा है ऐसे ना, कि वो बचा सकता है भाई, उसके पास इतनी सुपर पावर है तो वो बचा सकता है, पर नहीं। तो फिर इस चीज़ को लेके थी वो मद्देनजर। सो बाकी तो फिलहाल ये वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।